Hello everyone. We are going to start with class 7th Geography chapter 1. The name of the chapter is Environment. In this chapter, we can connect the natural environment with human beings. You can make your own notes from these slides. It will help you understand this chapter better. Now let's start. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. So environment is basically that surrounds ourselves. Environment का मतलब होता है जो हमारी सराउंडिंग में होता है. That is air we breathe, the water we drink, the food we eat, and where we live, the land. So all these is constitute as an environment. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, the water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build the factories. So all these environment is modified with the human actions, with the human environment. Now human beings make cars, mills, factories and manufacture container. This is how human beings modify natural environment. So here we can introduce the connectivity between natural environment and human influencing the natural environment. Now let's see some other pictures to understand the environment better, how this environment influence the human being and how human beings are influenced the natural environment. Now let's talk about the component of the environment. The first one is natural component of environment and the second one is human made environment. अगर हम natural component of environment की बात करते हैं तो we are going to talk about water as in hydrosphere, air as in atmosphere, land as in lithosphere, living things as in biosphere. So हम आगे इस वीडियो में इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे. नाउ लेट्स कम टू द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट दैट कंस्टिट्यूट बाय द बिल्डिंग्स, पार्क्स, bridges, monuments, industries and roads, etc. And now let's talk about another component of environment. So we human beings are also a component of environment. We as an individual, we as a family member, we as a member of the community and a member of the religion, educational and economic and the political situation. We are belongs to all religion, educational and economic and political situations. So as an individual we are working and we are working in different kinds of institutions. So human being is acting on the behalf of their groups where we belongs to. So now let's talk about environment. So people, things and nature that surrounds any living organisms is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena. When we talk about the definition of environment, so जब हम environment की बात करते हैं, जितने भी लोग हमारे आसपास होती हैं, जितनी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, या तो वो नेचर यानी प्रकृति द्वारा दी गई होती हैं या मानव द्वारा निर्मित होती हैं. ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है, हमें महसूस होती हैं, इन सब चीज़ों से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बनता है. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment relies the activities, creations and interaction among human beings. So when we talk about the natural environment, it is refers to the both biotic and abiotic conditions. So we will later on in this video we will differentiate between biotic and abiotic condition. Right now let's talk about the briefing of it. Now human environment, where the activities and interaction between the human beings and with the environment is called as ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. सो इन्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता जो हमें प्रकृति से मिला होता है. इन्वायरमेंट का मतलब होता है मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध होता है, जो उनकी अंतर्निर्भरता होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. Now let's talk about the difference between the biotic and abiotic component of the natural environment. So here we are talking about the natural environment and we are dividing the natural environment into two parts. The first one is biotic and the second one abiotic. So biotic, when we talk about, it means the living things. All the living things that surrounds us, that gives by the nature itself, is called the biotic. बायोटिक का मतलब होता है जिन चीज़ों के अंदर लाइफ पॉसिबल होती हैं. दे कैन ब्रीथ, वो सांस ले सकते हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं. दे कैन मल्टीप्लाई देमसेल्फ.
सो वो सभी चीज़ें लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं, यानी व्हेन वी टॉक अबाउट बायोटिक, इट क्रिएटेड बाय द ऑल लिविंग थिंग्स on the earth. We can talk about as an example like plants, animals, bacteria and fungus. Now let's talk about abiotic. Abiotic का मतलब होता है non living things. Non living things when we talk about, they cannot breathe, they cannot multiply. जिस तरीके से वाटर हमारी अर्थ पे जितना है उतना ही रहता है, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई. विद द हेल्प ऑफ द वाटर साइकिल यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि पृथ्वी पर जितना पानी है वो हमेशा उतना ही रहता है, ना तो वो कम होता है ना वो ज़्यादा होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो सब वैसे होते हैं जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, जो ब्रीथ नहीं ले सकते, जिनमें लाइफ पॉसिबल नहीं होती. सो व्हेन वी टॉक अबाउट देयर एग्जाम्पल वी कैन take as water, land, all these things. Let's come to the natural environment now. Land, water, air, plants and animal comprises the natural environment. So when we talk about, you all know that natural environment में वो सभी चीज़ें आती हैं जो नेचर द्वारा यानी प्रकृति द्वारा इंसान को मिली होती हैं. So on your screen you can see a pond ecosystem. Ecosystem मतलब we will further understand it better. So now नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो हमें प्रकृति द्वारा मिली होती हैं, चाहे उसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट या एनिमल्स की हम बात करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट. डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब होता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है एंड जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. व्हेन वी टॉक अबाउट एयर, दैट इज़ कंस्टिट्यूट by the atmosphere. Hydrosphere when we talk about water, lithosphere when we talk about the land, and biosphere where the life is possible. The combination of atmosphere, hydrosphere and the lithosphere is called the biosphere. Now let's come to one by one. So let's talk about lithosphere first. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks, minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plain, valley, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. So when we talk about lithosphere, lithosphere का मतलब होता है हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सबसे बाहरी परत होती है, दैट इज़ कोल्ड एज क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं. और उसके जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो सॉइल की बनी हुई होती है, यानी मिट्टी की बनी हुई होती है, जिसमें रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. सो इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस. इर्रेगुलर सरफेस का मतलब होता है ये एक हर जगह से एक समान नहीं है. हर जगह अगर हम देखें पृथ्वी पर, अलग अलग जगह पर जब हम जाते हैं तो हमें कहीं पर माउंटेन देखने को मिलते हैं, कहीं पर प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, कहीं पर प्लेन्स देखने को मिलते हैं, वैलीज देखने को मिलती हैं. सो जो सरफेस ऑफ द अर्थ है इट इज़ नॉट रेगुलर, इट इज़ इर्रेगुलर, यानी ये समतल एक समान हर जगह नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्नता देखी जाती है. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर. व्हेन वी टॉक अबाउट देयर कवरिंग एरिया, सो इट इज़ कवर्ड बाय द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो द ओशियन फ्लोर. ओशियन फ्लोर का मतलब होता है जहाँ पर पानी की सतह ख़त्म होती है, नीचे एक परत होती है पृथ्वी की सतह की, ये ओशियन के नीचे पाई जाती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओशियन फ्लोर्स. सो लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. It is a source of minerals also. Now on your screen you can see a part of the lithosphere. So it is a part of the whole earth, the layers of the earth. So when we talk about the uppermost layer of the earth, it is called as crust, and the second layer of the earth is called mantle, and the last layer of the earth is called core. So these three layers are divided into the distance, according to the distance from the center to the surface of the earth. So when we talk about from the surface to the bottom, now let's understand about the hydrosphere. The domains of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas and ocean, etc. It is essential for all living organisms. So when we talk about hydrosphere, hydrosphere का मतलब होता है हमारी पृथ्वी पर पानी हमें जिस जिस अवस्था में मिलता है, चाहे वो रिवर्स में हो, चाहे वो लेक्स में हो, सीज़ में हो, ओशीन में हो, सो ये सारा पानी एक साथ मिलाकर हम बात करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है हाइड्रोस्फेयर. इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू ऑल नो दैट without water we cannot survive on the earth, so it is an essential component for the living, so that is called the hydrosphere.
After understanding the hydrosphere, let's come to the water cycle. So when we talk about water cycle का मतलब होता है पृथ्वी पर जितना पानी होता है वो उतना ही रहता है. क्यों? ड्यू टू द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि अगर आप धूप में कपड़े सुखाते हैं या फिर पानी धूप में रख देते हैं या फिर ओशियन या रिवर्स में जो वाटर होता है, ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द सन रेज, इट इज़ इवेपोरेटेड. वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है. आफ्टर इट रीच द हाइट, ये क्या होता है? ये सारा वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड कंडेंसेट, ये एक साथ इकट्ठा हो जाता है, बैठ जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. ये सारे वाटर वेपर्स एक साथ कंबाइन होकर क्लाउड की फॉर्मेशन बनाते हैं. एंड आफ्टर व्हेन दे आर गेटिंग हैवी, जब ये हैवी होने लग जाते हैं तो ये अपने वाटर को अपने अंदर रिटेन नहीं कर सकते. इसी वजह से क्या होता है? रेनफॉल होता है. इट इज़ टर्म एज प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये सारा वाटर पृथ्वी पर वापस आ जाता है और इन रिवर्स और लेक्स में ये सारा वाटर दोबारा कलेक्ट हो जाता है. सो ये जिस तरीके का फ्लो वाटर का पृथ्वी से जाकर वापस आता है, इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है. चलिए अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास जो एयर की लेयर बनी हुई होती है हमारे आसपास, चाहे उस एयर के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इसी सब को हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो ये वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, इसको हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपनी तरफ खींच कर रखता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज. और जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसकी जो अलग अलग परतें होती हैं, ये हमें रेडिएशन ऑफ द सन की रेडिएशन से जो हार्मफुल होती है उनसे बचाता है और उन सब हीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कैच करता है, जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स. सो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, डस्ट पाए जाते हैं एंड वाटर वेपर्स. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. सो चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर में जितने भी चेंजेस हैं उनकी वजह से ही वेदर में और क्लाइमेट में चेंज होते हैं. नाउ फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द इन्वायरमेंट. सो द फर्स्ट लेयर फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द troposphere. After that, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So 5 layers of atmosphere. In the troposphere, all the climatic conditions happen. यहाँ पर clouds पाए जाते हैं. And when we talk about the stratosphere में किसी तरीके से climatic condition नहीं होती, इसीलिए बेस्ट लेयर होती है टू फ्लाई द एरोप्लेन्स. एंड द ओजोन लेयर जो हमारी प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर. मीजोस्फेयर क्या होता है? बहुत ठंडी लेयर होती है, इसमें जितने भी एस्ट्रॉइड्स आते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं. एंड द थर्मोस्फेयर में हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स होती है वो सारी थर्मोस्फेयर में ही पाई जाती हैं. एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एक्सोस्फेयर. नाउ लेट्स कम टू द बायोस्फेयर. Plants and animals kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to the support of the life. So when we talk about the life, so biosphere का मतलब होता है जहाँ पर life possible होती है. In the atmosphere we cannot survive. सिर्फ हवा से हम जीवित नहीं रह सकते. In the hydrosphere we cannot survive जब तक हमारे पास atmosphere की air नहीं होगी. And we cannot survive on the land without water and without air. So जहाँ पर इन तीनों का मिक्सचर होता है, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, वहीं पर लाइफ पॉसिबल होती है. और उसी लाइफ पॉसिबिलिटी को हम बायोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पर इंटरेक्शन होता है लैंड, वाटर एंड एयर का, एंड दैट सपोर्ट्स द लाइफ. With the help of this picture on your screen, you can understand the biosphere better. So it is a mixture of atmosphere means gases, hydrosphere means water and lithosphere means earth, where all these three components of the natural environment meets, the possibility of life exists there. So that is called the biosphere.
The next topic is ecosystem. Ecosystem, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, इनका आपस में एक संबंध होता है, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. अगर हमें प्लांट्स ना मिले, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द फूड, एंड अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे, वी कैन नॉट प्लांट वीट, हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. सो ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो इसी लिंकिंग को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होता है एनर्जी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर शेर को भूख लगती है तो वो डियर यानी हिरन को खाता है. सो एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ हुई? हिरन से सीधा शेर में हुई. सो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है एक जीव का दूसरे जीव पर, इसी को कहते हैं, इसी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम. All plants, animals and human beings depends on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding forms an ecosystem. Ecosystem का मतलब होता है जो living organisms होते हैं और जो relation between one organisms to their अनदर ऑर्गेनिजम्स, यानी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशन की बात करते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स और उसके सराउंडिंग की बात करते हैं. सराउंडिंग का मतलब, अगर एक शेर जंगल में रहता है, उसकी सराउंडिंग क्या होगी? जंगल, यानी ट्रीज़ होगा, वहाँ पर वाटर होगा, बहुत सारी अलग अलग कंपोनेंट होंगे. सो रिलेशन बिटवीन अ लायन एंड the atmosphere, lithosphere and biosphere. So all these relation is called the ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lakes, river, ocean and even a small pond. जिस भी जगह की हम बात करते हैं, उस जगह की एक सराउंडिंग होती है, वहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, रिवर होती है, पोंड होती है. वो सब क्या होते हैं? जीवन के लिए ज़रूरी आवश्यक तत्व एक दूसरे को देते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है. फ्रॉम दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन यू कैन अंडरस्टैंड अ पोंड इकोसिस्टम. पोंड इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर एक पोंड के थ्रू डिफरेंट लाइफ्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है. Now let's talk about the last concept of this chapter, that is human environment. Human beings interact with the environment on day-to-day basis and modify it according to their needs. यानी human beings यानी हम लोग interact with the environment, environment के साथ interact करते हैं और हमारी हर दिन की गतिविधियों से हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करते हैं और वातावरण भी हमें प्रभावित करता है. ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन अवर नीड ग्रूज. जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण हमारी पृथ्वी पर बढ़ रहा है, वी लर्न न्यू वेज टू फुलफिल अवर नीड. हमने ऊर्जा की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी अलग अलग विधियाँ इन्वेंट की हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी अलग सोर्स से मिलती है. नाउ वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स. सूर्य की ऊर्जा से भी हम एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं. वी लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड क्रिएट अ सिस्टम वेयर इन ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, बार्टर सिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स. सो हमने बहुत सारी नई पद्धतियों, नई व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया है. फर्दर मोर वी गैदर things as per demands. Example, to construct a building we need raw material including rocks and woods. For this we may look for nature. We can get rocks from the mountains and wood from the cutting down the trees. So we are totally dependent upon the natural things. हमें किसी भी चीज़ को क्रिएट करना होता है, इन्वेंट करना होता है, वी नीड द नेचुरल थिंग्स टू फुलफिल आवर नीड्स, टू मेक दैट थिंग्स हैपन. सो इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट होता है और जो ह्यूमन्स होता है, उनके बीच की जो इंटरडिपेंडेंसनेस होती है एंड उनका जो रिलेशन होता है, दैट क्रिएट्स द ह्यूमन इन्वायरमेंट. यानी मनुष्य के आसपास जितनी चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्रकृति से ली हुई होती हैं या फिर मानव द्वारा ली हुई होती हैं, दे आर टुगेदर इंटर रिलेटेड to each other, that is human environment. Let's talk about some facts from this chapter. So when we talk about a fact, on 5th of June every year the World Environment Day is celebrated. So we need to celebrate environment to aware the people. That's why we took the 5th June as in World Environment Day. Now let's talk about the glossary.
सो इकोसिस्टम के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है. बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. सो गुड्स के बदले गुड्स जब हम लेते हैं विदाउट यूजिंग द मनी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वीट है, मैं उसको किसी मिल्क सेलर को दूंगी, मिल्क सेलर मुझे मिल्क देगा और मैं उसे वीट दूंगी, मैं किसी भी मनी का इस्तेमाल नहीं करूंगी. दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. आई होप it will help you better. Now thank you so much. Stay safe, stay healthy.